Let's turn today again to Romans chapter 8. आइए आज फिर से हम रोमियो अध्याय 8 की ओर चलें। We've been looking in our last studies at this wonderful chapter which describes life in the Holy Spirit, freedom from condemnation, verse 1. हम अपने पिछले अध्ययनों में इस अद्भुत अध्याय को देख रहे थे जो पवित्र आत्मा में जीवन का वर्णन करता है, दोषारोपण से स्वतंत्रता का वर्णन करता है। Freedom from the law of sin and death, verse 2. पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्रता, वचन 2। Fulfilling the righteous requirement of the law, verse 4. व्यवस्था की धार्मिक मांग को पूरा करना, वचन 4। Having our mind transformed by the Spirit, verse 5. आत्मा के द्वारा अपने मन की परिवर्तित होना, वचन 5। Peace in our mind by the Spirit, pleasing God, verse 8. आत्मा के द्वारा हमारे मन में शांति, परमेश्वर को प्रसन्न करना, वचन 8। And the Spirit of Christ Himself, verse 9. और स्वयं प्रभु यीशु मसीह की आत्मा, वचन 9। Making our spirit alive through righteousness, verse 10. धार्मिकता के द्वारा हमारी आत्मा को जीवित करना, वचन 10। Giving us a foretaste in our mortal bodies of that resurrection life we shall one day enjoy in our body, verse 11. हमारे नश्वर शरीर में उस पुनरुत्थान जीवन का पूर्व स्वाद देना जिसे हम एक दिन अपने शरीर में अनुभव करेंगे, वचन 11। Giving us the power, verse 13, to put to death the deeds of the body, verse 13. शरीर के कामों को मार डालने की सामर्थ्य देना, वचन 13। Leading us, thus manifesting that we are the sons of God, verse 14. हमें अगुवाई करना और इस प्रकार यह प्रकट करना कि हम परमेश्वर के पुत्र है, वचन 14। Crying out, Abba, Father, from within us, verse 15. हमारे भीतर से अब्बा पिता पुकारना, वचन 15। Assuring us that we're God's children, giving us security in Him, leading us along the pathway of suffering, so that we can become heirs with Him. हमें यह दिखाना कि हम परमेश्वर की संतान है, उसमें हमें सुरक्षा देना और हमें दुख के मार्ग पर चलाना ताकि हम उसके साथ वारिस बन सके। And in our last study we were also looking at a groaning within us, verse 23. हमारे पिछले अध्ययन में हम अपने भीतर होने वाली एक कराह को भी देख रहे थे, वचन 23। The first fruits of the Spirit, what we have tasted of the Holy Spirit, we read in verse 23, can be compared to the first fruits. It's like a tree full of mangoes, and say one or two fruits have become ripe. आत्मा के प्रथम फल, हमने पवित्र आत्मा का जो स्वाद चखा है, जैसा कि हम वचन 23 में पढ़ते हैं, उसे प्रथम फलों के समान समझा जा सकता है। यह ऐसा है जैसे एक पेड़ आमों से भरा हो और मान लीजिए कि उनमें से एक या दो फल पक गए हो। There are hundreds of mangoes in that tree, but you got just one or two so far, the first fruits, the ones that are ripe. उस पेड़ पर सैकड़ों आम है, पर अभी तक आपके पास केवल एक या दो ही है, प्रथम फल जो पक चुके हैं। And what we have experienced of the Holy Spirit so far in our life is only a first fruits. हमने अपने जीवन में अब तक पवित्र आत्मा का जो अनुभव किया है वह केवल प्रथम फल ही है। It's just a little bit of what we are going to experience in fullness one day when Christ comes back in glory. यह केवल उस बात का थोड़ा सा अंश है जिसे हम एक दिन पूर्णता में अनुभव करेंगे जब मसीह महिमा में लौटेंगे। And the Holy Spirit is in tune with the mind of God. God wants to change this whole old creation into something new. पवित्र आत्मा परमेश्वर के मन के साथ सामंजस्य में है। परमेश्वर इस सारी पुरानी सृष्टि को कुछ नया बनाना चाहते हैं। To finish with that old creation that was destroyed and ruined by sin, and to make it something new. And He begins that by starting in our heart. पाप के द्वारा नष्ट और बिगाड़ी गई उस पुरानी सृष्टि का अंत करना और उसे कुछ नया बनाना, वह इसकी शुरुआत हमारे हृदयों में आरंभ करके करता है। In our hearts, He gives us this new life to begin with, and one day it will cover the whole earth as the waters cover the sea. And this is the meaning of receiving the first fruits of the Spirit. हमारे हृदयों में वह हमें आरंभ के लिए यह नया जीवन देते हैं और एक दिन यह पूरी पृथ्वी को वैसे ही भर देंगे जैसे जल समुद्र को ढांप लेता है। यही आत्मा के प्रथम फल प्राप्त करने का अर्थ है। And the Spirit, because it's in tune, He is in tune with the mind of God, He gives us also that same desire, a groaning, a longing
for the new creation and the spirit of love and peace and joy to flood the earth. क्योंकि आत्मा परमेश्वर के मन के साथ सामंजस्य में है, वह हमें भी वही इच्छा देता है, एक करा, एक लालसा नई सृष्टि के लिए और प्रेम, शांति और आनंद की आत्मा से पृथ्वी के भर जाने के लिए. That longing. It's in this hope that we're saved. And if you are responding to the promptings of the Holy Spirit, you will find within yourself a dissatisfaction with everything in this world. वह लालसा इसी आशा में हम उद्धार पाएं. यदि आप पवित्र आत्मा की प्रेरणाओं के प्रति उत्तर दे रहे हैं, तो आप अपने भीतर इस संसार की हर एक वस्तु के प्रति असंतोष पाएंगे. If you are comfortable in this world, you can be pretty sure that you're not responding to the promptings of the Holy Spirit. यदि आप इस संसार में सहज और आराम में हैं, तो आप यह निश्चित समझ सकते हैं कि आप पवित्र आत्मा की प्रेरणाओं के प्रति उत्तर नहीं दे रहे हैं. A person who is responding to the promptings of the Holy Spirit will not feel comfortable in this world. There'll always be a groaning, a longing to move on to that better kingdom. जो व्यक्ति आत्मा की प्रेरणाओं के प्रति उत्तर देता है, वह इस संसार में सहज महसूस नहीं करेगा. उसमें सदा एक करा, एक लालसा रहेगी कि वह उस उत्तम राज्य की ओर आगे बढ़े. I've met a lot of people in India who are always longing and hoping to migrate to a better country, to some Western country. मैंने भारत में बहुत से लोगों से मुलाकात की है जो हमेशा एक बेहतर देश में, किसी पश्चिमी देश में प्रवास करने की लालसा और आशा रखते हैं. And they're longing and hoping, and many times their longing is not fulfilled, and they're disappointed when they don't get an immigrant visa or something like that. वे लालसा और आशा रखते हैं और कई बार उनकी यह लालसा पूरी नहीं होती, और जब उन्हें अप्रवासी वीजा या इस प्रकार की कोई अनुमति नहीं मिलती तो वे निराश हो जाते हैं. That longing, why do they long to go to a better country? They can live more comfortably there. वे एक बेहतर देश में जाने की लालसा क्यों रखते हैं? ताकि वे वहां अधिक आराम से जीवन बिता सके. Now, this is a picture, a faint picture of the longing that a true child of God has for heaven. He's not happy here. अब यह उस लालसा की एक धुंधली झलक है जो परमेश्वर के सच्चे बच्चों को स्वर्ग के लिए होती है. वह यहाँ प्रसन्न नहीं होता. He's not happy no matter how rich he becomes, no matter how famous he becomes. He longs for heaven, where he can have the life of God. वह प्रसन्न नहीं होता, चाहे वो कितना ही धनी बन जाए, चाहे वो कितना ही प्रसिद्ध क्यों न हो जाए. वो स्वर्ग के लिए लालसा रखता है जहाँ वो परमेश्वर के जीवन को प्राप्त कर सके. And if we have this longing, then we know this, we are in cooperation with the Holy Spirit. यदि हमारे भीतर यह लालसा है तो हम जान सकते हैं कि हम पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता में हैं. And he goes on to say in verse 26 something more about life in the Spirit, and that is praying in the Spirit. वो आगे वचन 26 में आत्मा में जीवन के बारे में और कुछ कहता है, और वह है आत्मा में प्रार्थना करना. The Spirit helps us in our weakness. That's a beautiful verse. Jesus called the Holy Spirit in John 14 a helper. आत्मा हमारी निर्बलता में हमारी सहायता करता है. यह एक सुंदर वचन है. प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा को यूहन्ना 14 में सहायक कहा है. We need a helper only when we are weak. When we're strong, we don't need a helper. हमें सहायक की आवश्यकता तभी होती है जब हम निर्बल होते हैं. जब हम बलवान होते हैं तब हमें सहायक की आवश्यकता नहीं होती. And when a lot of believers think that they are strong, they don't need the power of the Holy Spirit at all. The power of the Holy Spirit is needed only if we recognize we're weak. बहुत से विश्वासी सोचते हैं कि वे बलवान हैं और उन्हें पवित्र आत्मा की सहायता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता तभी होती है जब हम यह पहचानते हैं कि हम निर्बल हैं. And so, the Spirit comes to help us in our weakness. He's a helper. And the first area where He helps us is in prayer, it says in verse 26. Because we don't know how to pray as we should. इसलिए आत्मा हमारी निर्बलता में हमारी सहायता करने आती है. वह एक सहायक है. पहला क्षेत्र जिसमें वह हमारी सहायता करता है वह प्रार्थना में है. वचन 26 में कहा गया है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए. We don't know the way in which we should pray, and we don't know what to pray for. We pray for a lot of stupid हम things. नहीं जानते कि हमें किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, और यह भी नहीं जानते कि हमें किस बात के लिए प्रार्थना करनी चाहिए. हम बहुत सी मूर्खतापूर्ण बातों के लिए प्रार्थना करते हैं. God wants to give us better things. Nobody prays for suffering.
But God allows a lot of suffering in the lives of His children because that's the way they get sanctified. परमेश्वर हमें बेहतर बातें देना चाहते हैं। कोई भी दुख के लिए प्रार्थना नहीं करता, परंतु परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन में बहुत सा दुख होने देते हैं, क्योंकि उसी मार्ग से वे पवित्र किए जाते हैं। Let me give you an illustration from the Old Testament. आइए मैं आपको पुराने नियम में से एक उदाहरण देता हूँ। In the Old Testament, we read of the first three kings of Israel as Saul, David, and Solomon. हम इज़राइल के पहले 3 राजाओं शाऊल, दाऊद और सुलेमान के बारे में पढ़ते हैं। Why was it that the reign of Saul was such a useless reign? And why was it that the reign of King Solomon also ended in spiritual disaster? ऐसा क्यों हुआ कि साउल का राज्यकाल इतना व्यर्थ था और क्यों राजा सुलेमान का राज्यकाल भी आत्मिक विनाश में समाप्त हुआ? Both Saul and Solomon, their reigns ended in spiritual disaster. साउल और सुलेमान दोनों का राज्यकाल आत्मिक विनाश में समाप्त हुआ। David was also an imperfect man, just like Saul and Solomon, but his reign for 40 years was such a glorious reign. What was the difference? दाऊद भी साउल और सुलेमान की तरह एक अपूर्ण मनुष्य था, असिद्ध मनुष्य था, परंतु उसका 40 वर्षों का राज्यकाल इतना महिमामय था। क्यों? क्योंकि अंतर क्या था? The difference was that David had gone through many years of suffering, unrighteous, unjust suffering, before he came to the throne. अंतर यह था कि दाऊद ने सिंहासन पर आने से पहले अनेक वर्षों तक दुख सहा था, अधर्मी और अन्यायी दुख। Whereas Saul and Solomon had a very comfortable, cushy life before they came to the throne. That was the essential difference. जबकि साउल और सुलेमान ने सिंहासन पर आने से पहले बहुत आरामदायक जीवन बिताया था, यही मूलभूत अंतर था। That teaches us something in our Christian life too. We are fit for reigning only if we have gone through suffering. यह हमें हमारे मसीह जीवन में भी कुछ सिखाता है। हम राज्य करने के योग्य तभी होते हैं जब हम दुख के मार्ग से होकर गुजरते हैं। Otherwise, we don't know how to reign. Our reign will be disastrous, like Saul's and Solomon's. अन्यथा हम नहीं जानते कि राज्य कैसे करना है। हमारा राज्य साउल और सुलेमान के समान विनाशकारी होगा। If you want your reign to be glorious, you must be willing to suffer like David. यदि आप चाहते हैं कि आपका राज्य महिमामय हो, तो आपको दाऊद की तरह दुख सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। So, the Spirit prays according to the will of God. It says in verse 27, verse 26, the Spirit intercedes for us with groanings too deep for words. इस प्रकार आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करती है। वचन 26 में कहा गया है कि आत्मा हमारे लिए ऐसी आहो के साथ विनती करता है जो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। Sometimes we have longings in our heart which we cannot express in words. कभी-कभी हमारे हृदय में ऐसी लालसाएं होती है जिन्हें हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। Some of those longings can be expressed in tongues and other ways, but there are others which are so deep it cannot be expressed in any way. Groanings too deep for words. उनमें से कुछ लालसाएं अन्य भाषाओं में और अन्य तरीकों से व्यक्त की जा सकती है, परंतु कुछ ऐसी होती है जो इतनी गहरी होती है कि किसी भी प्रकार से व्यक्त नहीं की जा सकती। ऐसी आहें जो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। And he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because he intercedes for the saints according to the will of God. जो हृदय की जांच करता है वह जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र लोगों के लिए विनती करता है। Here is an amazing verse. We know that Jesus intercedes for us according to Hebrews 7:25. यह एक अद्भुत वचन है। हम जानते हैं कि इब्रानियों का पत्र 7:25 के अनुसार प्रभु यीशु हमारे लिए विनती करते हैं। Here we are told that the Holy Spirit also intercedes from within us. How does the Holy Spirit intercede? Through your tongue, through my और tongue. यहाँ हमें बताया गया है कि पवित्र आत्मा भी हमारे भीतर से विनती करता है। पवित्र आत्मा कैसे विनती करता है? तुम्हारी जीभ के द्वारा, मेरी जीभ के द्वारा। Jesus has already got a body. Now the Holy Spirit takes your body and my body and intercedes through us. He's in the same ministry as Jesus of intercession, of praying, asking God to do things. यीशु के पास पहले से ही एक शरीर है
अब पवित्र आत्मा आपके और मेरे शरीर को लेकर हमारे द्वारा विनती करता है। वह उसी सेवकाई में है जिसमें प्रभु यीशु है। विनती करना, प्रार्थना करना और परमेश्वर से कामों को पूरा कराना के लिए निवेदन करता है। And if we open ourselves to the Holy Spirit, He will make us pray according to the will of God. यदि हम अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए खोल दे तो वह हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने योग्य बना देगा। He intercedes for the saints according to the will of God. He will make us pray for God's people. वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र लोगों के लिए विनती करता है। वह हमें परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करने के योग्य बनाएगा। If a man is filled with the Holy Spirit, he will pray for God's people according to God's will. यदि कोई मनुष्य पवित्र आत्मा से भरा हुआ है तो वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करेगा। He won't be praying primarily that God's people will be prosperous and rich and famous and get big jobs on the earth. वो मुख्य रूप से यह प्रार्थना नहीं करेगा कि परमेश्वर के लोग समृद्ध, धनवान, प्रसिद्ध बने और पृथ्वी पर बड़े बड़े पद प्राप्त करे। No. He will be praying that God's people will become Christ-like and will seek His kingdom first and His righteousness and live for the glory of God in their daily lives. That's what he's going to pray for them. नहीं, वह यह प्रार्थना करेगा कि परमेश्वर के लोग मसीह के समान बने, उसके राज्य और उसकी धार्मिकता को पहले खोजे और अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन बिताए। वही वो उनके लिए प्रार्थना करेगा। And this is what the Holy Spirit prompts us to pray for ourselves and for others. यही वह बात है जिसके लिए पवित्र आत्मा हमें अपने लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करने को प्रेरित करता है। Now I believe that if a man is filled with the Holy Spirit, he will be in fellowship with Christ, and if Christ is praying, he'll be praying. मैं विश्वास करता हूं कि यदि कोई मनुष्य पवित्र आत्मा से भरा हुआ है तो वह मसीह के साथ सहभागिता में होगा, और यदि मसीह प्रार्थना कर रहे हैं तो वह भी प्रार्थना करेगा। He will lean upon God in helpless dependence for his ministry. He will always long that God's power will be manifested through him. He'll recognize he cannot live this Christian life on his own. वह अपनी सेवकाई के लिए असहाय निर्भरता में परमेश्वर पर झुका रहेगा। वह सदा यह लालसा करेगा कि परमेश्वर की सामर्थ्य उसके द्वारा प्रकट हो। वह यह पहचान लेगा कि वह अपने आप से इस मसीह जीवन को नहीं जी सकता। The other thing we read in Romans 8:28 is that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. एक और बात जो हम रोमियो का पत्र 8:28 में पढ़ते हैं वह यह है कि परमेश्वर उन लोगों के लिए जो उससे प्रेम रखते हैं और जो उसकी योजना के अनुसार बुलाए गए हैं सब बातों को मिलकर भलाई के लिए कार्य करने देता है। Now this is a very, very big subject. And it teaches us something about the tremendous sovereignty of God over all the circumstances and events that touch the lives of His children. यह एक बहुत बड़ा विषय है। यह हमें परमेश्वर की उस महान सर्वसत्ता प्रभुता के बारे में सिखाता है जो उसके बच्चों के जीवन को छूने वाली सभी परिस्थितियों और घटनाओं पर है। All things are mentioned in verse 28. It's Almighty God controlling all circumstances, events that affect the life of His children, those who love Him. वचन 28 में सब बातें का उल्लेख किया गया है। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो उन सभी परिस्थितियों और घटनाओं को नियंत्रित करते हैं जो उसके बच्चों जो उनसे प्रेम रखते हैं के जीवन को प्रभावित करती है। This promise, remember in verse 28, is one of the most fantastic promises of the sovereignty of God as it affects our lives. But I want you to notice here that it does not apply to every person in the whole world. वचन 28 को स्मरण रखते हुए यह प्रतिज्ञा हमारे जीवन पर लागू होने वाली परमेश्वर की प्रभुता की सबसे अद्भुत प्रतिज्ञाओं में से एक है, पर ध्यान दे कि यह पूरे संसार के प्रत्येक व्यक्ति पर लागू नहीं होती। When you read a promise in Scripture, you need to find out whether it applies to you or not. जब आप पवित्र शास्त्र में कोई प्रतिज्ञा पढ़ते हैं तो आपको यह जानना आवश्यक है कि वह आप पर लागू होती है या नहीं। To whom does it apply? To those who love God. Jesus said in Luke chapter 16 verse 13 to 15,
He said, you cannot serve two masters. You cannot love God and money. यह किन पर लागू होती है? उन पर जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। प्रभु यीशु ने लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 13 से 15 वचन में कहा, तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। तुम परमेश्वर और धन दोनों से प्रेम नहीं कर सकते। This promise, Romans 8:28, is not for those who love money. It's not for those who want to be famous and popular in the world. It's for those who love God. यह प्रतिज्ञा रोमियो का पत्र 8:28 उन लोगों के लिए नहीं है जो धन से प्रेम करते हैं। यह उन लोगों के लिए नहीं है जो संसार में प्रसिद्ध और लोकप्रिय होना चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। It's for those who are called according to His purpose, whose aim in life is to fulfill God's purpose for their lives, not their own. यह उन लोगों के लिए है जो उसकी योजना के अनुसार बुलाए गए हैं, जिनका जीवन का उद्देश्य परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, न कि अपनी इच्छा को। What is the promise for them? God will cause every single thing that happens in their life to work together for their good. उनके लिए प्रतिज्ञा क्या है? परमेश्वर उनके जीवन में होने वाली हर एक बात को मिलकर उनकी भलाई के लिए कार्य करने देगा। Isn't that a fantastic promise? Isn't it wonderful to love God, to seek His purpose, because everything will then begin to work for our good. क्या यह एक अद्भुत प्रतिज्ञा नहीं है? क्या परमेश्वर से प्रेम करना और उसकी योजना को खोजना अद्भुत नहीं है? क्योंकि तब सब कुछ हमारी भलाई के लिए कार्य करने लगेगा।